हेलो गाइस। आज हम लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर 8, जिस जो सब्जेक्ट है सप्लीमेंट्री इंग्लिश का सेकंड पार्ट। देखिए, इसमें चैप्टर 8 है जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम। कारखाना घर नहीं है। This story reflects the challenge of being a teenager and the problem of growing up. How does the author overcome his problem? यह कहानी एक युवा के चैलेंज और उसकी वृद्धि की समस्याओं को दर्शाता है। लेखक अपनी समस्याओं पर विजय किस प्रकार प्राप्त करता है? My first year of high school felt awkward. After leaving junior high school at the head of my at the head of my head of my class with all the society, the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friend were sent to a different high school. I felt very isolated. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in a school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when they happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the physiology in what they were saying, but I look some comfort in it nonetheless. हाई स्कूल के प्रथम वर्ष में मैंने अटपटा सा अनुभव किया। जूनियर हाई स्कूल को त्यागने के बाद, जहां मैं अपनी कक्षा का एक वरिष्ठ विद्यार्थी था, मैंने वह सच्ची उच्च सोपान प्राप्त किए थे। फिर भी मुझे नए सिरे से शुरू करते हुए अटपटा सा लगा। ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था और मेरे लिए इसका वातावरण और भी बदतर हो गया था। जब मेरे घनिष्ठ मित्रों को किसी अन्य विद्यालय में भेज दिया गया था, मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। मुझे अपने पुराने अध्यापकों की इतनी याद आती थी कि मैं उन्हें मिलने के लिए जाया करता था। वह मुझे प्रोत्साहित किया करते थे कि मैं विद्यालय की गतिविधियों में भाग लूं और नए लोगों से मिलूं। उन्होंने मुझे बताया कि समय गुजरने पर वह समायोजित हो जाएगा और संभवतः अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करने लगेगा। उन्होंने मुझसे वचन लिया कि जब ऐसा जब ऐसा हो जाए तब भी मैं वहां आता रहूंगा और समय समय पर उनसे मिलता रहूंगा। मैं वे जो कुछ कह रहे थे उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टि को समझ गया था, लेकिन मुझे फिर भी इन बातों में कुछ अच्छा लगा। On Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our
One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cool and windy fall day, and we had fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. She was never far from me. I had resuscitated her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. एक रविवार को दोपहर बाद मुझे उच्च विद्यालय में आए अभी तक ज़्यादा समय नहीं बीता था। मैं अपने घर पर भोजन कक्ष की मेज के आगे बैठा गृह कार्य कर रहा था। यह एक ठंडा दिन था और तेज हवा चल रही थी और हमारी अंगीठी में आग जल रही थी। हमेशा की भांति मेरी लाल चितकबरी बिल्ली मेरे कागज के ऊपर बैठी थी, जोर जोर से गोरा रही थी और मनोरंजन के रूप में मैं पेन पर पंजा मनोरंजन के रूप में मेरे पेन पर पंजा मारी जा रही थी। वह कभी मुझसे दूर नहीं रही थी। जिस समय वह एक छोटी बच्ची थी, मैंने उसकी जान बचाई थी और किसी प्रकार वह जानती थी कि मैं उसे अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled the smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was an and fell in flames, and it was spreading quickly. I ran into the neighbor to call the first fire department while I watched my mother run back into the house. मेरी माँ आगे आग को ठीक से जला रही थी घर को गर्म रखने के लिए। अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई और तब मुझे विचित्र सा महसूस हुआ। जब तु, जब तुझे पता चला जब मुझे तब मुझे पता चला कि छत की दरार में से धुआं आ रहा है। कमरा शीघ्र ही धुएं से भर गया, जो हमें जो हमें देखने में कठिनाई हो रही थी। आगे वाले दरवाजे को टोलते हुए हम सामने के दरवाजे पर पहुंचे और भागकर सामने के ढलान में पहुंचे। जिस समय हम बाहर पहुंचे, सारी छत आग की लपटों से घिर गई थी और आग तेजी से फैल रही थी। मैं दौड़ा दौड़ा पड़ोसियों के पास गया कि वे अग्निश अ, अग्निशमन विभाग को बुलाए, जबकि मैंने अपनी माँ को वापस घर के अंदर भागते हुए देखा। माय मदर देन रन आउट of the house carrying a small metal box full of important document. She dropped the case on the lawn and in a crazy state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his picture and letters go to in flames. They were
the only things that she had remembered him by. Still, I skimmed at her. Mom, no, मेरी माँ तब घर से बाहर एक धातु का संदूक उठाते हुए भागकर निकली जिसमें आवश्यक कागजात थे। उसने संदूक को आंगन में डाला और उन्मादित अवस्था में दौड़ी हुई फिर घर के अंदर गई। मैं समझ गया कि वह क्या लेने गई है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास मेरे बचपन में ही हो गया था। मुझे विश्वास था कि मेरी माँ उनके चित्र तथा उनके पत्रों को आग की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहती थी। केवल यही चीजें थीं जिनके माध्यम से वह उन्हें याद किया करती थी। फिर भी मैं चिल्लाया, माँ नहीं! I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother's in there." He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I did run. She was right. He was right. It's all right. They all get her, he said. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. Soon after then, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over the hugged her. All those times I ever argued with her, hated her, questioned, and the thought of losing her. मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि एक बड़े हाथ ने मुझे रोक लिया। एक बड़े हाथ ने मुझे रोक लिया। वह उस अग्निशमन कर्मचारी था। मुझे ये पता नहीं था कि गली पहले से ही अग्निशमन की गाड़ियों से भरी हुई थी। मैं चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आप नहीं समझते, मेरी माँ अंदर है। उसने मुझे पकड़ कर रखा जब तक कि अन्य अग्निशमन कर्मचारी दौड़कर घर के अंदर गए। वह जान गया था कि मैं कोई बहुत समझदारी का काम नहीं कर रहा था। यदि वह मुझे छोड़ देता तो मैं भागकर अंदर चला जाता। वह सही था। वह बोला, सब ठीक है, वह उसे ले आएंगे। उसने मेरे चारों ओर कंबल लपेटा और मुझे पास कार में बैठा लिया। उसके तुरंत बाद फायरमैन मेरी माँ को खींचता हुआ घर से बाहर आया। वह उसे तीसरी ट्रक के पास ले गया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं दौड़ा दौड़ा वहां आया और माँ को गले लगा लिया। इस समय के दौरान उसने खोने का विचार मन में आया। तो वे सब अवसर जब मैंने उसे वाद विवाद किया था। तो वे सब अक्सर जब कभी मैंने उससे वाद विवाद किया था, उसके प्रति घृणा की भावना दूर हो गई थी। He is going to be okay, said the fireman. He just inhaled a little smoke and
Then he ran back to fight the fire while my mother and I sit there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. 5 hours later, the fire was finally out. Our houses was almost completely burned down. But then it struck me. I had not seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering the loss big टाइम फायरमैन ने कहा वह ठीक हो जाएंगी उसने थोड़ा ही धुआं सांस द्वारा अंदर ले लिया था तब तक वह बुझाने के लिए वापस चला गया जबकि माँ और मैं हैरान बैठे रहे मुझे याद है कि मैं मकान को जलता हुआ देख रहा था और सोच रहा था मैं इस विषय पर कुछ भी करने में आगे नहीं मुझे इस विषय में कुछ भी करने के योग्य नहीं था 5 घंटे बाद आग पर पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया हमारा घर प्राय पूरी तरह से जल चुका था लेकिन तब मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी बिल्ली को कहीं नहीं देखा मेरी बिल्ली कहाँ थी मैं भयभीत हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि वह एहसास हुआ कि वह मेरी बिल्ली को मैंने अपना नहीं देखा मेरी बिल्ली कहाँ थी मैं भयभीत हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि वह कभी भी नहीं थी तब जैसे ही मुझे एकदम ध्यान आया नई स्कूल आग मेरी बिल्ली मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं चिल्लाता रहा मुझे बहुत हानि हो रही थी जो बहुत समय से चल रही थी द फायरमैन वो नॉट let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or live. I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We peeled into the car with just the clothes on our backs and few of firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still be. I was. Oh, the fireman would let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We fell into the car with just clothes on our backs and few on the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework.
They became yet another casualty of the fire. So I had borrow some tennis shoe from my aunt. Why could not I just stay home from school? Uh, from my from school, my mother would not hear of it. But I was totally impressed by everything the cloth I was wearing looked where I had no book or homeworks and my backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in the rose eight goal, was I destined to be an outcast and geek all my life. That that's but it felt like I did not want to grow up, change, or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. उस रात फायरमैन ने हमें वापस घर में नहीं जाने दिया। वहाँ अब भी खतरा था। मैं अपनी बिल्ली के बारे में यह कल्पना नहीं कर सका कि वह मर गई थी अथवा जिंदा थी। इसके बावजूद भी वहाँ से हमें जाना पड़ा। हम उन्हीं कपड़ों में जो हमने पहन रखे थे और फायरमैन के कुछ कंबलों को पीठ पर लेकर कार में बैठी और अपने दादा दादी के घर रात गुजारने के लिए चली गई। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। जब आग लगी थी उस समय मैं सुबह चर्च में जो कपड़े पहनकर गया था उन्हीं कपड़ों में था, लेकिन मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। मैंने उन्हें अपना गृह कार्य करने के लिए उतार दिया था। यह एक और वस्तु थी जो आग की भेंट अ, इसलिए मुझे अपनी आंटी से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। मैं स्कूल ना जाकर घर क्यों नहीं रुक सकता था। मेरी माँ ऐसा नहीं सुनना चाहती थी कि, लेकिन मैं हर तरह से दुखी महसूस कर रहा था। जो कपड़े मैंने पहने हुए थे उनमें अजीब लग रहा था। मेरे पास न पुस्तकें थीं और ना ही अपना गृह कांडे, ना मेरे पिट्ठू बैग में मेरा पिट्ठू बैग मेरे पास था। मेरा तो जीवन ही पिट्ठू बन बैठा था। मैं जितना इसके बारे में सोचता था उतनी ही ज्यादा मुझे निराशा होती थी। क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो जाति से निकाला गया था और जिसका साथ जीवन भर छलावा ही हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता था और ना ही बदलना चाहता था, ना ही जीवन में संघर्ष करना चाहता था। मैं तो केवल सिकुड़ कर मर जाना चाहता था। I walked around school like a zombie. Everything felt surreal, and I was not sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. When my house and